Hello children, I am Poonam Bagga welcoming you in your maths class. Today we are going to start a new chapter, chapter 4, quadratic equations. In chapter 2 we have learnt about different types of polynomials. We have learnt about linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. And today we will be focusing on quadratic polynomials. We know that the general form of a quadratic polynomial is given by ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. And here you will see that the highest power of the variable is 2. The degree of this polynomial is 2, and that is why it is called a quadratic polynomial, because the word quad means square. So this is a quadratic polynomial. Now if we equate this polynomial to 0, then we have this equality sign in between, and now this has been converted into an equation, and this equation is called a quadratic equation. So now let us define what is a quadratic equation. A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0. तो आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2. The degree of this equation is 2. And remember, a, b, c here are real numbers and a is not equal to 0, because if a is equal to 0, then this term will be eliminated and the remaining expression will be a linear equation in variable x. But here we are dealing with quadratic equations, and so the coefficient of x square, this a, cannot be equal to 0. Yes, of course, this b may be 0 in some equations. It can be 0, but a should not be equal to 0. तो यहाँ पर a क्या है? x square का coefficient, b is the coefficient of x, and c is the constant term in this expression. Got it? Now here we have some examples. As you can see, 2x square plus x minus 300 equal to 0. This is a quadratic equation. Similarly, here also you can see the highest power of the variable is 2, and so it is a quadratic equation, and so are these two equations quadratic equations. If we compare this equation with the general form, तो आप a, b और c की वैल्यूज भी लिख सकते हैं. a is the coefficient of x square और यहाँ पर x square का coefficient है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2. Then b is the coefficient of x और यहाँ पर x के साथ कौन सा नंबर है? Coefficient of x here is 1, and so the value of b is 1, and c is the constant term, and here it is minus 300. So c की वैल्यू हो गई minus 300. Similarly, we can find the values of a, b and c in this equation. a is the coefficient of x square and it is 2. We write here 2. b is the coefficient of x and it is it 3? No, it's minus 3. Remember this, we have to take the sign also. So b is minus 3 and c is the constant term, and here it is plus 1, or simply we write 1. Similarly, we can select a, b and c in these equations also. Now we look upon the standard form of a quadratic equation, and we get the standard form of an equation when we arrange its terms in the descending order of their degrees. Here we have this expression. आप देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी पावर्स को देखते हैं. यहाँ x की पावर है 2, इस एक्सप्रेशन में x की पावर है 1, and in this expression x is missing. This means that the power of the variable is 0, because we know x raised to power 0 is 1. So here what we see, that the variable here is having its powers in the descending order. पहले पावर है 2, फिर 1, फिर 0. तो जो टर्म्स हैं इसकी वो अपनी डिग्रीज के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, और ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ डिग्री 2 है, इसलिए दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Getting the point here? So now when we look at these equations, ये first two equations तो standard form में है, जहाँ first term है x square की, फिर x और फिर constant, x square, x and constant. But look at this equation, ये equation, यहाँ आप देखेंगे पहले है x raised to power 1 और बाद में है x square. तो ये descending order नहीं है powers का, और इसलिए ये standard form नहीं है. But we convert it into the standard form by arranging the terms in this way. पहले हम लिखेंगे x square वाली टर्म जहाँ पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है 2.
then we write plus 4x and then plus 2 equal to 0. ये हो गया इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. सिमिलरली हम इस इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. फर्स्ट वी विल राइट द टर्म विद पावर 2, इट्स माइनस एक्स स्क्वायर, और आप देखेंगे x की टर्म मिसिंग है. सो हियर द वैल्यू ऑफ coefficient of x, that is b, it is 0, and so we will skip it and straight away we can write it 1 plus 300, it is 301 equal to 0. This is another quadratic equation in standard form. Getting the point here? Now the question arises that where do these quadratic equations arise? You will see that these quadratic equations arise in many real life situations around us. हमारे आसपास जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उनमें आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत आसानी से उनको रिप्रेजेंट कर सकती है. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स हियर. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली. तो यहाँ आप एक रियल लाइफ सिचुएशन देखेंगे जिसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और वो कैसे? लेट अस हैव अ लुक. Here we have this word problem. John and Jivanti together have 45 marbles. Marbles means कंचे जिनसे बच्चे खेलते हैं. सो जॉन एंड जीवंती, उन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों ने ही अपने मार्बल्स में से 5 मार्बल्स गुम कर दिए हैं, खो दिए हैं. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. और खो जाने के बाद उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनके नंबर का प्रोडक्ट है 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो हम चाहेंगे ये जानना कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे दोनों के पास. तो here we will be representing this real life situation by the help of a quadratic equation. हमें दिया है John and Jivanti. These are the names of two children given in the question. और दोनों के पास collectively 45 marbles हैं. हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं. देन हाउ मेनी मार्बल्स विल जीवंती हैव? बिकॉज देयर सम इज 45. तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स. जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स विल बी 45 माइनस एक्स. ये कैसे मिल रहा है हमें? सपोज जॉन हैज़ 10 मार्बल्स, तो ऑब्वियसली जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस 10 दैट इज 35, और तभी तो दोनों का सम आएगा 45. तो इस तरह से अगर हम 10 ना लेकर के x चलें, जॉन के पास x मार्बल्स हैं सपोज एंड जीवंती हैज़ 45 माइनस x मार्बल्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ ऑफ देम दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. सो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स खो जाने के बाद जॉन के पास कितने मार्बल्स बचेंगे? x माइनस 5. और जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x माइनस 5. और 45 माइनस 5 इट विल बी 40 एंड माइनस x. तो ये तो हो गए नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती एंड दिस इज द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स. और अब हमें दिया है कि तब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, खो जाने के बाद जो अब इनके पास मार्बल्स बचे हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट है 124. Now we will be representing this in the form of one equation. Let us start. Let us begin first. Let the number of marbles John had be x. Then the number of marbles Jivanti had, it will be 45 minus x. क्योंकि दोनों का sum 45 है. The number of marbles left with John when he lost 5 marbles, it will be x minus 5. x marbles पहले थे और 5 marbles खो गए, तो अब कितने बच गए? x minus 5. The number of marbles left with Jivanti when she lost 5 marbles, it will be 45 minus x minus 5. ठीक है, जितने मार्बल्स जीवंती के पास थे उसमें से 5 खो गए तो हमने -5 कर दिया. एंड 45 minus 5 it is 40 and then minus x. Now what is given in the question? According to the question, product of the number of marbles they have after each losing 5, it will be x minus 5 into 40 minus x. यही तो हो गया उन बचे हुए नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट. ये हो गया और ये हमें क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू 124. यहाँ से हमें मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, यू विल गेट, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वी टेक द फर्स्ट नंबर फ्रॉम दिस फर्स्ट ब्रैकेट और फिर हम लिखते हैं ये सेकेंड ब्रैकेट 40 माइनस एक्स, और यहाँ से लेंगे हम -5 एंड अगेन 40 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 124। ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि कैसे हम इसको एक्सपैंड करके खोल के सॉल्व करते हैं, बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर योर कन्वीनियंस। 40 into x, it will be 40x minus x into x, it will be x square minus 5 into 40, it's 200 and minus minus plus 5 into x is 5x, this is equal to 124। अब आप देखिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हम x स्क्वायर वाली टर्म लेंगे, दिस इज द टर्म विद x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम लेंगे टर्म्स विद द वेरिएबल x, यहाँ से मिल गया हमें 40x और यहाँ से हमें मिल गया 5x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और इसलिए ये ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्स्टेंट्स, यहाँ से है -200 और इस 124 को भी हम LHS में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -124, और क्योंकि RHS से 124 LHS में आ गया है तो अब RHS में कुछ भी नहीं बचेगा एंड सो वी राइट अ 0 देयर। नाउ सिंप्लीफाई, -x स्क्वायर प्लस 45x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 40x और 5x, तो ये आपस में ऐड हो गई 45x, और ये दोनों कांस्टेंट्स हैं तो आपस में ये ऐड हो जाएंगे, इट विल गिव अस -324 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है और हमें ये माइनस रिमूव करना चाहते हैं, तो हम इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सो दिस -x स्क्वायर विल बी चेंज टू +x स्क्वायर और ये बन जाएगा -45x और ये माइनस हो जाएगा +324 इक्वल टू -1 से जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। सो दिस इज नाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमने इस इक्वेशन से ये जो सिचुएशन दी हुई थी क्वेश्चन में उसको रिप्रेजेंट कर दिया है मैथमेटिकली। सो नाउ वी कैन राइट दिस इज the required quadratic equation। हमें quadratic equation से इस कंडीशन या इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना था और वो हमने कर दिया है। Got it? Now we should know how to solve this equation, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए और हम ये पता कर पाएँ कि जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने थे। तो सॉल्व करने का प्रोसेस हम सीखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। अभी आप सिर्फ इतना सीखिए कि कैसे हम एक सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। सो हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी हैव वन मोर पार्ट, हियर इट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. Again, this is one situation which we have to represent by the help of a quadratic equation. We begin with the unknown. देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, a cottage industry, small industry, it produces सर्टन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है ये इंडस्ट्री। सो लेट अस अज्यूम दिस नंबर टू बी x। मान लेते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कैसे मिल रहा है हमें, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, और एक दिन में हम कितने टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज x, सो इट विल बी 55 माइनस x। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय के बनने में जितना कॉस्ट लग रहा है वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड और वो है x, तो टोटल कॉस्ट हो गया ये 55 माइनस x। गेटिंग द पॉइंट। अब यहाँ कहा गया है ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ये कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट x टॉयज प्रोड्यूस करने का टोटल कॉस्ट है ₹750।
वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हम चाहते हैं कि ये वैल्यू x मिल जाए हमें कि एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसे हम एक इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस बिगिन। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x। ऑन विच डे? ऑन द डे व्हेन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। उस दिन की बात कर रहे हैं हम मान रहे हैं कि उस दिन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड वर x। Therefore, the cost of production in rupees of each toy that day, it will be rupees 55 minus x. ये हो गया cost of production of one single toy. Now, according to the question, total cost of production in rupees that day, it will be x into 55 minus x. This is given equal to rupees 750. ठीक है, ये टोटल कॉस्ट कैसे आया आप देखिए। एक टॉय का कॉस्ट है 55 माइनस एक्स, तो x नंबर ऑफ टॉयज का कॉस्ट कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली इट विल बी x इंटू 55 माइनस एक्स एंड दिस विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x नंबर ऑफ टॉयज, और ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू 750 रुपीज़। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। सो लेट अस डू इट। x इंटू 55, दिस विल बी 55x minus x into x, this will be x square. This is equal to 750. Again we will arrange it in its standard form. तो पहले हम लेंगे x square वाली टर्म minus x square plus 55x, और यहाँ से ये 750 LHS में आएगा तो minus 750 equal to 0, क्योंकि अब RHS में कुछ भी नहीं बचा है तो 0 लिखेंगे। अगेन वी हैव दिस x स्क्वायर टर्म विद अ माइनस, तो हम इसे प्लस करने के लिए सभी के साइन चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद -1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका साइन चेंज होके माइनस 55x, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। ये मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन मैथमेटिकली। और यही तो हमसे पूछा था। सॉल्व करना हम बाद में सीखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल representation of the given problem. Is it okay? I hope it is. Next we have one more question. Check whether the following are quadratic equations. अब हमें कुछ equations दी होंगी और हमें ये check करना है कि वो quadratic equation है या नहीं। तो यहाँ एक बार फिर से recall करते हैं कि एक quadratic equation का general form क्या होता है? It is ax square plus bx plus c equal to 0 and remember a is not equal to 0. अगर कोई equation इस form में हमें मिल जाएगी तब तो वो quadratic equation है जहाँ पर डिग्री है 2, highest power of the variable is 2, तब ये एक quadratic equation होगी। और अगर equation इस form में नहीं है तो वो quadratic equation नहीं होगी। So let us check the first one. This is the equation given. इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो लेट अस सिंप्लीफाई। इट इज x minus 2 whole square plus 1 equal to 2x minus 3. Let me rewrite it. x minus 2 it is. x minus 2 whole square plus 1 equal to 2x minus 3. यहाँ पर हम अपनी algebraic identity लगाएंगे which says that a minus b whole square, it is square of the first number a, square of the second number, and in between we can multiply both of them by 2. So a square minus 2ab plus b square, ये है इस square का expanded form. So here again we will be expanding this square, first number square, second number square, और बीच में हम दोनों को 2 से multiply करेंगे in case you have forgotten. Then we have plus 1 equal to 2x minus 3. ठीक है, हमने इस स्क्वायर को एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया और रिमेनिंग टर्म्स तो सेम है। Now here we see x square minus 4x
plus this 2 square will be 4 plus 1 equal to 2x minus 3. Again x square minus 4x, और अब हम इन दोनों टर्म्स को भी LHS में ले आते हैं. ये 2x इज द टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल x, तो इसे हम 4x के साथ ही लिखेंगे. ये यहाँ आके माइनस 2x हो गया, प्लस 4 प्लस 1 इट इज़ 5, और ये माइनस 3 LHS में आके प्लस 3, और अब RHS में कुछ भी नहीं बचा तो हम लिख सकते हैं 0. अब आप देखिए इसे, इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इट विल बी माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 इट इज़ 8 इक्वल टू 0. ये हो गया इस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म. और अब आप बताइए क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में है? बिल्कुल है. आप देखिए फर्स्ट टर्म इट इज़ एक्स स्क्वायर, तो डिग्री इस इक्वेशन की क्या हो रही है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पर हमारे पास है x वाली टर्म और ये है कांस्टेंट, तो सेम फॉर्म हो गया. सो हियर वी राइट इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, and therefore the given equation is quadratic equation. ये एक quadratic equation है. It is. Okay. Next we have one more part. Again first we will simplify this equation and then we will see whether it is quadratic or not. Rewrite the equation x into x plus 1 plus 8. This is equal to x plus 2 into x minus 2. यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x को दोनों ही टर्म से, तो x into x will be x square plus 1 into x will be simply x plus 8 will be as it is. और यहाँ पर आप देखिए x plus 2 x minus 2 it is of the form a plus b a minus b. Just recall the identity a plus b into a minus b it is equal to a square minus b square. ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये बार बार यूज़ होंगी और आई होप यू नो दिस वन. तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए की जगह है x और b की जगह है 2. सो आई होप यू कैन रिलेट इट वेरी वेल. नेक्स्ट वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 4. अब इन दोनों टर्म्स को भी हम यहाँ ले आते हैं LHS में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है. और अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो रही हैं दोनों ही टर्म्स, और बचा हुआ क्या है x प्लस 12, 8 प्लस 4 इज 12 इक्वल टू 0. तो अब बताइए आप क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इट इज 1 एज यू कैन सी. तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन हो गई, न कि क्वाड्रेटिक, बिकॉज हियर द टर्म विद द पावर 2 इज मिसिंग एंड सो this is a linear equation and not a quadratic equation. We write it is not of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. I hope it is very much clear to you all. Okay, next we have one more part. Again we will first simplify it. Let us write it once again. X into 2x plus 3 equal to x square plus 1. Let us open the bracket. X into 2x it will be 2x square plus 3 into x will be 3x equal to x square plus 1. इन दोनों टर्म्स को LHS में ले आते हैं. 2x square के साथ ही हम इस x square को लिखेंगे. It will be minus x square. Then we have plus 3x और इस 1 को LHS में लाएंगे, ये हो गया -1 और यहाँ बचेगा 0. नाउ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बी सिंपली एक्स स्क्वायर. 2 minus 1 is 1, need not to write 1. So x square plus 3x minus 1 equal to 0. और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2 और इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. This is its solution. Next we have one more part.
Now simplify this equation. Here we have this x plus 2 whole cube equal to x cube minus 4. यहाँ पर हमें इसे expand करना होगा और उसके लिए हम एक और identity लेंगे. Let us recall a plus b whole cube. It is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. ये है इसका एक्सपेंशन और इसी को यूज़ करते हुए हम इस क्यूब को एक्सपेंड करेंगे. फर्स्ट वी राइट एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 देन एक्स प्लस 2 एंड इन RHS वी हैव एक्स क्यूब माइनस 4. सिंप्लीफाई अगेन. एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इज 8 प्लस 3 2s are 6 and here we will have 6x square. X into x will be x square plus 3 2s are 6, 6 2s are 12. With it we have 12x. This is equal to x cube minus 4. Now let us have a look. Let us bring these two terms in the LHS. X cube plus 8 plus 6x square plus 12x minus x cube प्लस 4 इक्वल टू 0. अब आप देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और क्या बच गया देखिए. पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म 6x स्क्वायर और फिर हम लिखेंगे 12x और यहाँ से 8 प्लस 4 इट विल अगेन बी 12 इक्वल टू 0. और इसमें आप देखेंगे कि सभी टर्म्स इनमें कोएफिशिएंट जो हैं वो 6 के मल्टीपल्स हैं. तो हम 6 से डिवाइड करके इसको एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं. डिवाइडिंग बाय 6 दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 2s are 12 so here we will have 2x plus 6 2s are 12 so again 2 equal to 0. ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म. और अब आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2 और इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 and therefore the given equation is a quadratic equation. It's very easy. Okay. So with this we have done some examples. First we learnt what are quadratic equations. Then we learnt that how some real life situations can be represented with the help of a quadratic equation, and then we have learnt how to check whether a given equation is a quadratic equation or not. This we do by simplification. So with this I complete today's part. Next we will be doing exercise 4.1 in our next video. Till then try to do those questions once on your own. Till then goodbye.